Hello, my dear students. Welcome to this session. In chapter 5, today we are going to start with another family, that is family Solanaceae. It is a very large family and commonly it is known as potato family. As the potato plant, it is also included here. It is widely distributed in tropical regions, subtropical regions, and even in temperate zones. Now let us see the vegetative characters. Plants are mostly herbs, shrubs, and very small trees. If we see the structure of stem, they may be herbaceous, they are rarely woody, they are tender, we can say like that, and even aerial, erect, and cylindrical, branched, solid or hollow, as well as hairy or glabrous, and mostly underground stem, just like in potato they are seen. The scientific name of potato is Solanum tuberosum. Now let us see the leaves. Leaves may be alternate, simple, they are rarely pinnate compound leaf. Pinnate compound leaf we have seen in Fabaceae earlier. Then venation is reticulate, that means network type of venation is seen. Now more important characters are floral characters, how the flowers look like. If we see the inflorescence, it is solitary, it is cymose type as in Solanum. The flowers, they are bisexual, that means male and female reproductive structures, they are found in the same plant, in the same flower. It is actinomorphic, that means radial symmetry. The calyx, they have 5 sepals. Sepals are united, they are persistent, and even estivation which is seen, that is valvate. So you have to recall all the estivation subtypes which we have seen earlier, which we have learned earlier, because all these terms they will be repeated in this part also. See the corolla, the petals, they are 5, they are united, and here also valvate estivation that is observed. The male reproductive part, that is androecium, it has 5 stamens and they are epipetalous. Gynoecium, which is the female reproductive part, that is bicarpellary, that means 2 carpels they are found and both are fused, that means syncarpous condition. Even ovary is superior, it is bilocular, 2 locules they are found, and placenta is swollen with many locules. The fruit type is berry or capsule. Seeds, they are many because it is having many ovules. Definitely ovule will be converted into seeds after fertilization, we have learned earlier, and seeds, they are endospermic, that means endosperm is persistent. Then floral formula, it is displayed over here. I can't explain you like this, but first symbol is for symmetry, second is for bisexual nature, then calyx, then corolla, then androecium, and then gynoecium. Here a joining line between corolla and androecium is shown, that means both are joined. Okay, this is the meaning. Now last part is about economic importance. Many plants here which are belonging to this family, they are the source of food. I have told you potato is the main one, and even tomato and brinjal, they are included here. Then spices like chili, जो मिर्ची का प्लांट होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. देन मेडिसिनल प्लांट बेलेडोना एंड अश्वगंधा. अगर अश्वगंधा के बारे में आपने सुना हो, it has आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंस, it is used as medicine. Then fumigatory, it is tobacco plant for fumigation, just to kill the फंगस और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम फ्यूमिगेटरी फंक्शन बोलते हैं. एंड लास्टली ऑर्नामेंटल्स, दे आर मेड फॉर ब्यूटी, जस्ट लाइक पिटूनिया. आपको अगर मालूम हो तो इसके बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू लर्न, दे आर included as an economic importance in this Solanaceae family.
So students, here in this picture it is showing Solanum nigrum, जिसको मकोई प्लांट ऐसा बोलते हैं। एंड आप देख सकते हो सबसे पहले फ्लावरिंग ट्विग्स, जो सबसे यंगर ब्रांचेस होती हैं, वो उसका फ़ोटो दिखाया है आपको। देन बी इज़ फॉर फ्लावर, सी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, उसके पार्ट्स सारे डिस्क्राइब किए हैं, स्टेमन्स, कार्पल्स, वो भी आपको अलग अलग शो किए हैं। और सबसे लास्ट डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। इस पिक्चर में आपको सिर्फ फ्लोरल डायग्राम बनाना है, बाकी दूसरे पिक्चर्स आपको सिर्फ याद रखने हैं, उसके पिक्चर्स याद रखने हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सको वैसा याद रखना है। सो जो आपको डायग्राम आपकी क्लास वर्क में ड्रॉ करना है वो ये वाला है। और इसमें भी हम, जैसे हमने लास्ट फैमिली में सारे पार्ट्स डिस्क्राइब किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे ऊपर देखिए आप, प्लस का साइन है सर्कल के अंदर, दैट इज़ शोइंग एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री, जो हमने अभी पढ़ी थी। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आप देख सकते हो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। सबसे आउटर पार्ट में क्या होता है, कैलिक्स होता है, और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको कैलिक्स दिखाता है। उसके बाद दैट इज़ फॉलोड बाय कोरोला, देन एंड्रोशियम पार्ट आप देख सकते हो कोरोला से जॉइंट है, राइट। एंड लास्ट में अंदर आपको गाइनेशियम पार्ट दिखाएंगे। बहुत सारे ओव्यूल्स हैं और बाय कार्पलरी कंडीशन है, 2 कार्पल्स, आप इस तरह से 2 लॉक्यूलर कंडीशन आप देख सकते हो। तो सारे स्ट्रक्चर हम फ्लोरल फॉर्मूला में आपको समझा सकते हैं। इवन यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल दी स्ट्रक्चर्स। एंड इवन इफ यू सी the calyx, the corolla, they all are joint, united, ये भी आपको इस लाइन से आप दिखा सकते हो। ओके, सो दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर क्लास वर्क। चलिए लास्ट में हम फैमिली लिलिएसी के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द लास्ट फैमिली। अब तक हमने फैमिली फैबिएसी पढ़ी और आज हमने फैमिली सोलेनेसी पढ़ी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फैमिली लिलिएसी। Commonly it is known as lily family and it is characteristic representation of monocot plants. It is distributed worldwide. तो ये जितने भी स्पेशल फीचर्स हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, वो आपको खास याद रखने ही हैं। If you see the vegetative characters, it is perennial herb with underground bulbs or corms or rhizomes. Leaves mostly they are basal, they are alternate. ऑल्टरनेट आपको याद रखना है। एंड दे आर हैविंग पैरेलल वेनेशन। जनरली मोनोकॉट लीव्स में हम पैरेलल वेनेशन देखते हैं, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ इफ़ वी सी द फ्लोरल कैरेक्टर्स, हाउ द फ्लावर दैट इज़ अरेंज। सो व्हेन वी सी द इनफ्लोरेसेंस, किस तरह से फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, वो अगर हम सबसे पहले देखें तो इट इज़ ऑफ सॉलिटरी और साइमोस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। समटाइम्स लाइक इन ऑनियन, अम्बलेट क्लस्टर्स आर ऑल्सो फाउंड। अम्बल जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पहले बताया था। देन फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे भी दोनों मेल एंड फीमेल फीचर्स आपको एक ही फ्लावर में मिलेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो एक्टिनोमॉर्फिक, हैविंग रेडियल सिमेट्री। नाउ दिस इज द वेरी पिक्यूलियर characteristic here which is found in family Liliaceae, that is presence of perianth. I am again repeating here, calyx and corolla are absent. यहाँ पे आपको कहीं भी calyx और corolla नहीं बताया है because calyx and corolla नहीं होते हैं, rather perianth situation is present. तो जब भी perianth present होता है तब हम उसके units को बोलते हैं tepals. So here tepals are found, they are 6 in number और वो भी दो ग्रुप में हैं, एक ग्रुप में 3 और दूसरे ग्रुप में 3। तो इसीलिए हम डिनोट करेंगे 3+3। मैं आपको डायग्राम में भी ये बताने वाली हूँ, ये बहुत ही स्पेशल फीचर है। ऑफन दे आर यूनाइटेड इनटू ट्यूब एंड हियर इट इज शोइंग वाल्वेट एस्टिवेशन। देन इफ वी सी फॉर एंड्रोशियम, द स्टेमन्स आर प्रेजेंट, दे आर 6 in number and they are also found in 2 groups, 3+3। एक ग्रुप में 3, बाकी के ग्रुप में 3, सो 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं। देन C for gynoecium, it is tricarpellary, 3 carpels are found, okay,
इसके पहले सोलेनेसी में हमने बाइकार्पुलरी कंडीशन देखी, उसके पहले हमने फैबिएसी में मोनोकार्पुलरी कंडीशन देखी। तो ये भी कंपैरिजन आप देख सकते हो। हियर ऑल्सो गायनेशियम इज सिनकार्पस, ओवरी इज सुपीरियर and it is trilocular. Here 3 locules they are found and they are also having many ovules. Then placentation is exile. Now let us see the description of fruit. Fruit is here capsule type or sometimes rarely it is berry type. Seeds they are endospermic and floral formula is displayed over here. सबसे पहले उसमें actinomorphic condition, then bisexual condition, then perianth condition और उसमें भी 3+3 अरेंजमेंट इन 2 ग्रुप्स. इवन एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इन 2 ग्रुप्स 3+3, 3 इन नंबर. एंड लास्टली गायनेशियम, ये भी 3 इन नंबर है और ये फ्यूज्ड है. सो ब्रैकेट दैट इज शोन. नाउ लेट अस सी द एंड पार्ट, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस फॉर फैमिली लिलिएसी. Here many plants which are belonging to this family, they are good ornamental plants like tulip and gloriosa. ये दोनों ही अपनी ब्यूटी के लिए लगाए जाते हैं. Even some of them they are the sources of medicine. अगर आपने एलोवेरा के बारे में सुना हो, इस एलोवेरा के बहुत सारे फंक्शंस हैं और ये एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक प्लांट है जो जिसके बारे में सबको मालूम होता है. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. It also belongs to this family. Then some are used as vegetables like asparagus. Some are medicinal. Even they are used for research work like colchicine, जिसका scientific name है Colchicum autumnale. So इस तरह के सारे plants आपको इसमें मिलते हैं. Now with the help of this diagram, here Allium cepa, this is the scientific name of onion. और आपने ग्रीन ऑनियन देखे होंगे. फर्स्ट डायग्राम उसी का है. पूरा प्लांट इसमें बताया है. सबसे नीचे आप देख सकते हो रूट्स हैं, फिर स्टेम पोर्शन इसमें नहीं है. डायरेक्टली लीफ बेस आपको दिखाया है और लीफ बेस में ही फूड स्टोरेज होता है. और ऊपर आपको लीव्स दिखाई हैं और सबसे ऊपर उसका फ्लावर अरेंजमेंट जो अम्बल टाइप का है, जो बी डायग्राम में आपको दिखाया है. देन बी एंड सी बहुत अच्छे से दिखाया है आपको. और लास्ट डायग्राम फ्लोरल डायग्राम है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ इन योर क्लास वर्क, और वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ अभी इसके बाद वाली स्लाइड में. तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उसके पेरिएंथ पार्ट. आप देख सकते हो ये 3 ग्रुप हैं, 1, 2 एंड 3. ये आउटर पार्ट में है और उसके बाद इनर पार्ट में है 1, 2, 3. सो दीज आर यूनिट्स विच आर नोन एज टेपल्स एंड दे आर फाउंड इन 2 ग्रुप्स. हर एक ग्रुप में 3-3 यूनिट्स प्रेजेंट हैं. ओके. इसके बाद आता है एंड्रोशियम. डायरेक्टली यहाँ पे कैलिक्स कोरोला नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैलिक्स कोरोला आर एब्सेंट. और अब आता है 3+3 अरेंजमेंट एंड्रोशियम के लिए. दिस इज़ 1, 2 एंड 3 जो आउटर पार्ट में है और अब 1, 2 एंड 3 इनर पार्ट में है. तो ये भी 3+3 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं 2 ग्रुप्स. और लास्ट में इनर मोस्ट पार्ट में आएगा ट्राइलोक्यूलर ओवरी. तो ये 3 लोक्यूल्स मैं आपको बता रही हूँ, 1, 2 एंड 3. इसी तरह से सबसे अंदर हम देखेंगे तो ओव्यूल्स हैं. तो इस तरह से हम पूरा डिस्क्रिप्शन फ्लोरल डायग्राम की मदद से भी दे सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला डायग्राम ज़्यादा इजी गोइंग लगेगा ड्रॉ करने में. तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना, फ्लोरल डायग्राम फॉर एलियम सीपा and even the trilocular condition that is in detail given as transfer section of ovary. Now in last exercise is given and here I have tick mark all the questions which you are supposed to write in your class work as an assignment. Question 1, what do you mean by modification of root and what type of modification of root is found in banyan tree, turnip and mangrove trees. जितने भी हमने क्लास वर्क में लिखे हैं उसमें से ही आपको आंसर मिल जाएगा. देन थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ पाल्मेट एंड पिन्नेट कंपाउंड लीफ. सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन,
it is about phyllotaxy and you have to describe it with suitable example. Then question 5, you have to define all these terms. Then 6, differentiate between all these terms: racemose, cymose, fibrous, adventitious roots, apocarpus, syncarpus. Then draw the label diagram of gram and maize seed. ये भी हमने कर लिया है सीड वाले टॉपिक में. So question 7, then 8 and then 10. Modification of stem with suitable example, and lastly types of placentation which are found in flowering plants. जैसा हमने क्लास वर्क में डिस्प्ले किया है, इंक्लूड किया है विद डायग्राम, एज इट इज़ आपको फिर से कॉपी करना है. नाउ क्वेश्चन 12 and 14, हाउ डू वेरियस लीफ मॉडिफिकेशंस हेल्प टू प्लांट. वो भी आपको सारे लीफ मॉडिफिकेशंस एक्सप्लेन करने हैं. और लास्ट में 14th क्वेश्चन में फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक bisexual hypogynous flower with 5 united sepals, 5 free petals, 5 free stamens and 2 united carpels with superior ovary and axial placentation. तो इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, उसके बाद उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है और इसी के साथ साथ फ्लोरल डायग्राम भी ड्रॉ करना है. मैं ऐड कर रही हूँ ये पॉइंट, फ्लोरल डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है. तो इसी के साथ वी आर एंडिंग आवर चैप्टर हियर एंड होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. थोड़ा डिटेल में था, इतना डिटेल में आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, बट इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स भी आप देख के लर्न कर सकते हो, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं. ठीक है, सो वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर एंड इन नेक्स्ट सेशन आई विल गिव यू सर्टन असाइनमेंट and you have to complete it. Okay, so till then, bye bye students.